Today's video we are going to cover up magnetic field due to a current in a solenoid. Okay. Those students who are visiting for the first time, I request to them that they should subscribe the channel so that they will get the more useful videos from biology, chemistry, physics, math and everything from your class. And we are going to cover up the all MCQ and other practice questions here also. So be connected with us. You will get everything which is related to your studies. That may be in the form of video, PDF or something else. And so let me start the next topic. And this is the third part. And in this part we are going to discuss the magnetic field due to a current in a solenoid. Okay, what is the solenoid? Actually, the solenoid is some spiral winding like shape. Okay, spiral winding like shape. In this case, last time we have learned about the generation of magnetic field due to a circular loop carrying current wire. Okay, सर्कुलर लूप एक वायर जो करंट कैरी कर रहा था उसके द्वारा जो सर्कुलर लूप फॉर्म हुआ था वो हमने लास्ट टाइम देखा था। और इस बार हम क्या करेंगे, वही लूप को इस तरीके से देखेंगे। मान लीजिए एक वायर गया और एक वायर यहाँ से फिर इस तरीके से मुड़ता है, फिर ये पीछे जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे, फिर ये इस तरीके से यहाँ पर वाइंडिंग जो कर रहा है। ठीक है, यहाँ से आप मेरे फॉर्मेशन को देखते रहिए कि मैं किस तरीके से फॉर्म कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से अगर ये निकल रहा है, ठीक है, तो हम उन चीज़ों को यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, सपोज दिस इज कनेक्टेड टू द प्लस टर्मिनल एंड दिस इज कनेक्टेड टू द minus terminal in this way, so the current will start flowing in this direction and this will be a minus terminal, so current will start flowing in this direction and that will come to the this direction. So this portion you can see here in the image, this is solenoid and this is solenoid also. So the current is flowing from this positive terminal to negative terminal through the this complete wire, and here you can see that every wire is forming a circular loop like structure. Okay, they are not exactly circular loop but they are forming circular loop like structure. So here you will when you will see that current is flowing from this particular portion to this portion, then you can find when you will apply the right hand thumb rule here, at particular this loop current is flowing from this direction. When you will carry what I say cover up this with your right hand, then you will find that your fingers are pointing in inward direction, and this will happen with every single loop here. Okay, every single loop will point in this direction, that is in this direction. You can see that lines are going inside, these are magnetic field lines, they are going inside and they are coming from this outside. So this is coming from outside. There is another trick also. When you will see this loop, I am going to what I say make this loop separately, then you can see that this loop is in this form and this is traveling this current from the here to here. So when you will make the portion south, then this south will resemble you like that, current is flowing in this way. So this type of pole in which clockwise direction current is flowing, that will make south pole. And when you will come to this point, then here you will see that the last loop which is making the current, when you will see from this side, then you will see that this loop is forming current in this direction. So this will make north pole. Okay, although if you find the one pole, then directly you will find the another pole also, but when you are going to judge this pole independently, then you can also judge this one. When you will look from this side, you will find this loop and you will see that current in this loop is just traveling in this way. They are not connected with each other, but if you you will what I say assume a circular loop, you will find that current is flowing in such a direction. So the actually here you will see that current is flowing in this direction, that is anti-clockwise. So here north pole will be formed. So here is north pole and here is south pole. This is the concept. You will have to draw this in exam also, and sometimes when you will see that this changes because if you are not making the winding in this way,
and you are started the making winding in this direction, then again this field will change. There is change in sense of वाइंडिंग. वाइंडिंग को अगर आप इस यहाँ ले जाने के बाद अगर कॉपी में इस तरीके से घुमा रहे हैं तो मतलब बाहर के साइड से अंदर ले जा रहे हैं तो अलग पोल बनेगा, और अंदर के साइड से बाहर ले आ रहे हैं तो अलग पोल बनेगा. ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है. वैसे अगर आप ये छोटी सी गलती करेंगे तो भी आपको कोई जल्दी पकड़ेगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर कोई आपको अपना काम एक्यूरेट करना चाहिए. तो ये जो बना हुआ है यहाँ पे, इसमें जो वायर है, वायर पीछे साइड है, यानी दिस इज़ बैक पोर्शन, ब्लैक वायर इज इन ब्लैक पोर्शन, बैक पोर्शन, एंड द दिस रिंग विच इज़ कमिंग टू दी योर साइड. ओके, ये आपके तरफ आ रही, तब यहाँ पे बनेगा आपका साउथ पोल. ये बात आपको ध्यान में रखना है. ठीक है. नाउ magnetic field due to a current in a solenoid. The insulated copper wire, these are the insulated copper wire. They are not what I say open, they are not necked wire, they are insulated. As you see in your surrounding, they are insulated wire. Okay, on a cylindrical tube, such that its length is greater than its diameter, is called a solenoid. Its length should be, this is the length, should be greater than its diameter. What is diameter? This diameter of this circular portion, this portion you can see here, this is diameter portion. इससे बड़ी होनी चाहिए इसकी लेंथ, तब हम क्या बोलेंगे उसको solenoid. Again see the definition. The insulated copper wire wounded on a cylindrical tube such that its length is greater than its diameter is called solenoid. Okay, this is called solenoid. The solenoid is from Greek word for channel. Solenoid जो शब्द है इसका मतलब होता है चैनल. एक ग्रीक शब्द है, इसका मीनिंग होता है चैनल. चैनल का मतलब कहता है कि कई सारे लोगों का, कई सारी चीज़ों का एक साथ जुड़ना. तो हमने जो लास्ट टाइम में जो सर्कुलर लूप पढ़ा था, वही सर्कुलर लूप सिंगल थी, अब वही सर्कुलर लूप यहाँ पे कई सारे लोगों को एक साथ जोड़ेगी, तो दैट इज़ कॉल्ड अ चैनल. ओके, नाउ the solenoid is a long coil containing a large number of closed turns of insulated copper wire. This is closed term of insulated copper wire. You can see that the color of this coil is also made in the form of copper wire, that is looking like in the shape of copper. Okay, now the second one, the magnetic field produced by a current carrying solenoid is similar to the magnetic field produced by a bar magnet. This behaves like a bar magnet. Okay, you can see, you have already seen this one in your previous classes also. Here when you will replace this solenoid by a bar magnet, you will see the same type of magnetic field line formation. Okay, you will see the same type of magnetic field line formation. Clear? Okay. Now the strong magnetic field produces inside the current. Okay. Sorry, where we were last time? This is the magnetic field produced by a current carrying solenoid is similar to the magnetic field produced by a bar magnet. Okay. The third point is the current in each turn of a current carrying solenoid flows in the same direction, due to which the magnetic field produces by each turn of the solenoid ends up giving a strong magnetic field inside the solenoid. जो मैंने आपको अभी पहले लास्ट में बात बताई थी कि जो इसके द्वारा जो एक सिंगल जो टर्न है यहाँ पे, ये भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ प्रोड्यूस कर रहा है, ये भी अंदर की तरफ, ये भी अंदर की तरफ और ये भी अंदर की तरफ. तो इस तरीके से क्या होता है, पूरी एक लाइन जो होती है वो स्ट्रेट लाइन बनती है. और ऐसे ही हर लूप बना रही हैं तो हर एक का मैग्नेटिक फील्ड ऐड होते जा रहा है. तो यहाँ पर इन सब का जो एक चैनल होता है, सबका मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है. तो यहाँ पे यही बताया गया कि जो सर्कुलर लूप्स हैं यहाँ पे, जिनको हमने जोड़ा हुआ है, चैनल बनाया हुआ उनका, वो सब मिलके एक स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट करती हैं, क्योंकि उसके अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है सबका सब आपस में जुड़ जाता है और एक स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मेशन करता है. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज द स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड द करंट कैरिंग सोलेनॉइड कैन बी यूज्ड टू मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन. यानी अगर इसके अंदर आप सॉफ्ट आयरन रख दो, ठीक है, इस तरीके से वायर को बाउंड करके उसके अंदर अगर आपने सॉफ्ट आयरन रख दिया,
तो भी एक मैग्नेट के तरह बिहेव करने लगेगा। व्हेन प्लेस्ड इनसाइड द सोलेनॉइड द मैग्नेट दस फॉर्म्ड इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो अगर आप उसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन का मटेरियल रख देते हो तो वो और भी एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा, और उस मैग्नेटिक बिहेवियर को, उस मैग्नेटिक नेचर को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। दैट मीन द मेकिंग ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, सो ए सोलेनॉइड इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी सोलेनॉइड का ही इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए। आपने जितने भी बड़े बड़े गाड़ियों में या बड़ी जगहों पर जहाँ पे बड़े बड़े चुंबक का इस्तेमाल होता है वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज होता है और इसी तरीके से बनाया जाता है। तो जब द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ कैरिंग करंट सोलेनॉइड, करंट कैरिंग जो सोलेनॉइड है वो किन बातों पे डिपेंड करेगा? और डिपेंड करेगा कि इसमें कितने नंबर ऑफ टर्न है, हमने पहले भी डिस्कस किया है। और एक बात जो डिपेंड करेगा वो डिपेंड करेगा कि स्ट्रेंथ ऑफ करंट, यानी स्ट्रेंथ ऑफ करंट क्या है उसमें, ठीक है? स्ट्रेंथ ऑफ करंट कितनी फ्लो कर रही है, जो कि हमने पहले भी देखा है, ठीक है? फिर उसके बाद जो थर्ड पॉइंट आता है, नेचर ऑफ कोर मटेरियल यूज्ड इन सोलेनॉइड, यानी इसमें आपने जो सॉफ्ट आयरन रखा हुआ था अंदर इसके यहाँ पर जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जनरेट हुई है, तो वहाँ पे जो आपने मटेरियल रखा था वो भी उस पर भी डिपेंड करेगा, यानी नेचर ऑफ कोर मटेरियल यूज्ड इन सोलेनॉइड पे भी डिपेंड करेगा। यूज ऑफ सॉफ्ट आयरन एज अ कोर इन अ सोलेनॉइड प्रोड्यूसेस द स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिज्म, यानी अगर आप सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल करते हैं तो स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिज्म जनरेट करता है सॉफ्ट आयरन, ठीक है? तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि इसमें जो सोलेनॉइड होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो स्टार्टिंग में जब आपने सोलेनॉइड की डेफिनेशन यहाँ पे देखी थी तो उसमें आपने इसको सिर्फ कॉपर वायर को सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में, सिलेंड्रिकल ट्यूब के ऊपर आपने इसमें क्या किया था? वाउंड किया था। लेकिन अगर उसी के अंदर आप इस तरीके से कोई मैग्नेट रख देते हो तो उस कंडीशन में यहाँ पर इस नॉर्मली इसमें कम करंट फ्लो की जा सकती है, लेकिन अगर आप जैसे कि इसमें सॉफ्ट आयरन रखोगे तो आप एक्स्ट्रा करंट भी फ्लो करा सकते हो और वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह भी बिहेव करने लगेगा। फिर हम यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, अब इलेक्ट्रोमैग्नेट इलेक्ट्रिसिटी की मदद से बनाया जाता है और जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं वो नेचुरली ऑकरिंग मटेरियल होते हैं। अच्छा, मैग्नेट बनता कैसे है? मैग्नेट बनता है जो उसके अंदर जो डोमेन्स पाए जाते हैं किसी भी मटेरियल के अंदर। डोमेन मतलब एक प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर मूवमेंट होता है उनके अंदर, जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उनका। तो कुछ में तो ऑलरेडी उनका प्रॉपर ओरिएंटेशन होता है, यानी सब लोग एक ही प्रजाति के होते हैं जिनको जो मैग्नेट की तरह बिहेव करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से फोर्स करते हैं कि वो लोग मैग्नेट की तरह बिहेव करें, ठीक है? दिस इज सिंपल डेफिनेशन। इन हायर क्लासेस यू विल what I say get more knowledge about this. Okay, an electromagnet is a temporary strong magnet and is just a solenoid with its winding on a soft iron core, ठीक है? इलेक्ट्रोमैग्नेट टेम्परेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है एंड परमानेंट मैग्नेट इज मेड फ्रॉम स्टील। ज़्यादातर जो परमानेंट मैग्नेट बनाए जाते हैं वो स्टील से बनते हैं और कुछ तो नेचुरली ऑकरिंग होते हैं। एज स्टील हैज़ मोर रिटेंटिविटी देन द आयरन, इट डज नॉट लूज इट्स मैग्नेटिज्म ईजिली, यानी जो परमानेंट मैग्नेट में हो अगर बनाना है आपको तो आप स्टील का इस्तेमाल करोगे, अगर आपको टेम्परेरी मैग्नेट बनाना है तो आप यहाँ पे सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? तो ये बात आपको दोनों ध्यान में रखनी है। टेम्परेरी मैग्नेट बनाना है तो सॉफ्ट आयरन, परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो आपको स्टील का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है? दोनों फ़र्क क्या है हम देख लेते हैं, ठीक है? और यहाँ पे एक चीज़ का इस्तेमाल किया गया है, मोर रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी का मतलब आपने सेम सोलेनॉइड के अंदर सेम टाइम के लिए, मान लीजिए 5 मिनट के लिए ही सही, आपने अगर सॉफ्ट आयरन रखा तो वो भी मैग्नेट बनेगा, और आपने 5 मिनट के लिए ही स्टील का यहाँ पे रखा, ठीक है? सेम करंट आपने उस कॉइल में फ्लो कराया, 5 मिनट बाद आपने पावर कट कर दिया तो सॉफ्ट आयरन जो है कुछ देर तक मैग्नेट की तरह काम करेगा, कुछ सेकंड कुछ मिनट तक, उसके बाद ये मैग्नेट की तरह काम करना बंद कर देगा। इवन दो इंस्टेंटली भी बंद कर देगा, इतना इसका पावर नहीं होता कि ये इसको स्टोर कर सके। जबकि स्टील जो है वो काफ़ी लंबे समय तक उस मैग्नेटिक पावर को अपने अंदर स्टोर करके रखेगा। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रिटेंटिविटी। कितना उसने रिटेन किया, ठीक है? कितना अपने पास बचा के रखा। ऐसा नहीं कि लूज नहीं करेगा, लूज ये भी करेगा और ये भी करेगा, लेकिन ये सब कुछ लूज कर देगा और ये कुछ अपने पास बचा के रखेगा। सो फॉर मेकिंग द परमानेंट मैग्नेट we use the steel as it have more retentivity. Okay, now electromagnet and permanent magnet. An electromagnet is a temporary magnet
as it can readily demagnetize by stopping the current through the solenoid. यानी हम जैसे ही करंट फ्लो करना बंद करेंगे सोलेनॉइड से, ये अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर देगा, जबकि परमानेंट मैग्नेट में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, वो अपना बचा के रखेगा। इसकी स्ट्रेंथ को है चेंज किया जा सकता है, यानी जो सॉफ्ट आयरन से जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बना रहे हैं, अगर हम ज़्यादा करंट फ्लो कराएंगे तो इसकी स्ट्रेंथ जो है वो कुछ देर के लिए चेंज हो सकती है, लेकिन जो परमानेंट मैग्नेट है इसके केस में स्ट्रेंथ के चेंज होने की संभावना नहीं रहती, क्योंकि ऑलरेडी जितना इसको रिटेन करना होता है उतना वो रिटेन करके रखता है, और जितनी इसकी क्षमता होती है वो उतना ऑलरेडी ये अपना अटेंड करके फिक्स हो जाता है, सेचुरेट हो जाता है। थर्ड पॉइंट है, इट प्रोड्यूसेस वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्सेस, डेफिनेटली बिकॉज इट्स वर्किंग फॉर शॉर्ट मूवमेंट, सो द all alignment of all the domains take place in the same direction, so it works at very strong magnetic force. Okay, it produces weak forces of attraction, यानी weak force of attraction ये प्रोड्यूस करता है, क्योंकि उतना अच्छा नहीं काम करता, स्टील है तो इसके डोमेन का अलाइनमेंट होता है, बहुत मुश्किल से होता है, लेकिन फिर वापस जल्दी आता भी नहीं है, इस वजह से ये थोड़ा सा वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करता है, जबकि इसमें सभी के अलाइनमेंट आसानी से हो जाते हैं, इसका मतलब कमज़ोर था तो ये फिर से अपने पुनर्वस्था में आसानी से आ जाता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज पोलैरिटी कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट, यानी ये तो फिर से नया नया रूप मतलब बन जाता है, क्योंकि डीमैग्नेटाइज होता है फिर मैग्नेटाइज होता है, तो इसकी पोलैरिटी चेंज हो सकती है, बट परमानेंट मैग्नेट में पोलैरिटी चेंज नहीं की जा सकती, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक सॉफ्ट आयरन का मटेरियल है, ठीक है, तो नीचे साउथ और ऊपर नॉर्थ बन रहा है, तो अगर आपने वाइंडिंग में जो करंट की डायरेक्शन की फ्लो है अगर आपने चेंज करा दी, ठीक है, मान लीजिए आपने वायर कुछ ऐसे कनेक्ट किया था, इसमें आपने पहले करंट यहाँ से दिया तो कुछ अलग सिनेरियो होगा, लेकिन अगर आप करंट यहाँ से देंगे तो कुछ अलग सिनेरियो होगा। तो सॉफ्ट आयरन यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसके केस में पोलैरिटी चेंज हो सकती है, लेकिन जो स्टील है जो परमानेंट मैग्नेट बनाता है उसके केस में ये चीज़ चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, वाई सॉफ्ट आयरन इज यूज फॉर मेकिंग द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, बिकॉज इट कैन लूज ऑल ऑफ इट्स मैग्नेटिज्म व्हेन करंट इज इन कॉइल इज स्विच्ड ऑफ, यानी जब उसके अंदर की जो करंट जो है उसको स्विच ऑफ करते हैं तो अपना पूरा का पूरा मैग्नेटिज्म लूज कर देता है। क्योंकि अगर आपने क्या किया कि कार जब खाई में गिरी थी तो आपने क्रेन लगाया, इलेक्ट्रोमैग्नेट की मदद से आपने जैसे ही करंट पास कराया दैट पोर्सन बिकम द मैग्नेट, क्रेन से जुड़ा हुआ कुछ सॉफ्ट आयरन का पोर्शन मैग्नेट बन जाता है, कार को चिपका लिया। लेकिन अगर आप करंट को मान लीजिए कि पास करना बंद कर दें और अगर कार तब भी ना छूटे तो फिर तो कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के केस में ऐसा नहीं होता, जैसे ही आप करंट उसमें से पास करना बंद करेंगे, कार चाहे आधे रास्ते में हो चाहे आपके नॉर्मल प्लेस पे आ गई हो, वो छूट ही जाएगी उससे, ठीक है। द सेकंड क्वेश्चन है, वाई स्टील इज़ नॉट यूज फॉर मेकिंग द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, स्टील को क्यों यूज नहीं करते? क्योंकि इसका रिटेंटिविटी पावर अधिक होता है, इसको पावर कट करने के बाद भी ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, इसलिए हम इसको यूज नहीं कर सकते इलेक्ट्रोमैग्नेट के रूप में, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है उसको हम ऐसा चाहते हैं कि जब तक हम पावर सप्लाई दें तभी तक वो मैग्नेट का काम करे, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट डज नॉट लूजेस ऑल ऑफ लॉस it does not loses all of its magnetism when current in the coil is switched off. Okay, this is the question. These are the in-test question from the NCERT book, page number 229 and 230. And okay, here is some exercises given. You can do it by yourself also. Here you can see the magnetic field in a given region is uniform. Draw a diagram to represent it. This diagram is representing the flow of uniform magnetic field lines. Okay, these properties of these lines are, they are equidistant. Here you can see the distance between each of the magnetic field line is same and they are parallel to each other. This is the property as we have discussed already in your previous classes also. This is uniform magnet. How it is formed? This is formed when you will place a north pole of a magnet, large magnet here, and when we will place a south pole of a magnet here. They doesn't exist independently, so definitely it will have a south pole also somewhere and it will have a north pole also but somewhere, but here the magnetic field line will originate from north pole and they will ends to the south pole. Okay, in this direction, in this way. Okay, this is the formation of magnetic field line in uniform